So good morning, students. We are going to start with the most fantastic thing today, that is nothing but equity shares. But before starting with equity shares and before becoming too much tempted for investing into good shares, we must know that what are the shares which are good one for purchase and the timing as well. Along with that, we must know that there are two types of shares. One is equity shares and another is preference shares, that you can see on the screen as well. So the shares which you can purchase at any point of time on capital market or stock exchanges on BSE and NSE are called as equity shares. Equity shares are also called as common shares or ordinary shares, and these are the shares which usually give you the voting rights. These are the shares which usually give you the ownership rights. And at the same time, do remember that this is the most risky investment, but if there is a risk, obviously there are returns. That is the basic principle of finance there, and accordingly one should go for investing into equity shares for fabulous returns. Now, what are the different returns which are offered by equity shares to the investors? So you can see on the screen here, return number one is dividend. Dividend is nothing but the part of profit which is distributed by the company to the shareholders. So what is dividend? Dividend is nothing but part of profit which is distributed by the company to the shareholders. Just like when we are going to get interest on FD, then the same way investors are going to get dividend on their invested shares out of the part, that is profit after taxes. The second gain for which usually people are going to purchase equity shares are called as capital gain or capital appreciation. हर बार हमारी यही ख्वाहिश होती है कि हम शेयर खरीदे 100 का और हम बेचे 500 में, 1000 में या 2000 में, isn't it? And this particular phenomenon is called as nothing but capital gain or capital appreciation. सीधा साधा लॉजिक है, आपने शेयर खरीदा 100 में, उसका प्राइस हुआ 500, फिर आपने नहीं बेचा, उसका प्राइस हुआ 1000, फिर आपने बेच दिया. नाउ यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड कैपिटल गेन और कैपिटल अप्रिसिएशन आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखिए 10 टाइम्स रिटर्न्स है. आपने 100 रुपए लगाए और उस पर 1000 रुपए पाए. अब नंबर ऑफ शेयर्स आपने जितने खरीदेंगे, ऑब्वियसली द रिटर्न्स विल बी मोर एंड मोर इफ नंबर ऑफ शेयर्स विल बी मोर. So that is the fantastic logic behind investing into equity shares. So do remember, everybody, shares are purchased number one for dividend, that is part of profit which is distributed by the company to the shareholders. Second is capital gain or capital appreciation, which is the basic motive for investing into any kind of equity, common or ordinary shares like Infosys, TCS, Tata, Wipro, or you can say a number of shares are there, Praj Industries and Eicher Motors, MRF. These are the very good companies which has given tremendous and handsome returns to the investors over and above a number of years in the past as well as, and the same will be repeated in the future. There are a number of segments as well, a number of you can say sectors as well, like pharma, real estate, steel, automobile, and whatnot. These are the various sectors from which you can purchase good number of shares, good leaders, good market leaders, absolutely, and which can give you good appreciation, capital appreciation. Let me come back you to the basics again. Let me come back to the basics for all of you, that dividend is the first return which you will be getting on equity shares, common shares or ordinary shares. But do remember that this dividend is always paid on face value per equity share. एक सीधा साधा लॉजिक बोलता हूं, अगर मैं अभी आईसीआईसीआई बैंक के शेयर खरीदने जाऊं तो इट इज ट्रेडिंग एट ₹900 पर शेयर. आईसीआईसीआई में अगर खरीदने जाऊं तो उसका प्राइस है 900 रुपए पर शेयर, बट दैट इज द मार्केट वैल्यू. तो मैं अगर खरीदने जाऊंगा मार्केट वैल्यू पे, चलिए मान लीजिए मैंने 100 शेयर खरीदे, मतलब हाउ मच मनी आई इन्वेस्टेड इज 90K, दैट इज 90,000. 90,000 रुपए लगाए मैंने आईसीआईसीआई में, विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर. The share is trading at 900 and I purchased 100 shares. Now company is going to declare the dividend maybe yearly or maybe at times twice a year because of good profit there. Now company is going to give you the dividend on your number of shares. How many number of shares you are holding? That is 100. कंपनी आपको शेयर्स देगी, लेकिन डिविडेंड कब कंपनी आपको देगी? ना कि मार्केट प्राइस पे. कंपनी आपको डिविडेंड देगी फेस वैल्यू पे. और याद रखिए स्टूडेंट्स, face value per share is either ₹1 per share, 2 per share or usually 10 per share. ICICI का per share value, let's say that it is 10 per share. Face value 10 रुपए per share है. तो अगर 10 रुपए per share है, then do remember that dividend is always paid on face value per share. तो कंपनी अगर बोलती है कि हमने 200% भी डिविडेंड दिया, तो कंपनी ने 200% डिविडेंड किस पे दिया? 900 रुपए पे नहीं, विच इज मार्केट प्राइस. कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया 200% ऑन
फेस वैल्यू पर शेयर, और फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज है, तो डिविडेंड इज ऑलवेज पेड ऑन फेस वैल्यू पर शेयर एंड नॉट ऑन मार्केट वैल्यू. डिविडेंड इज पेड, सो डू रिमेंबर दिस एवरीबडी. ये याद रखिए, ये लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता. डिविडेंड इज पेड ऑन फेस वैल्यू FV, par वैल्यू PV और नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स. किसी भी इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड जब दिए जाते हैं स्टूडेंट्स, तो फेस वैल्यू पे दिए जाते हैं, पार वैल्यू पे दिए जाते हैं, नॉमिनल वैल्यू पे दिए जाते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पे दिए जाते हैं. डिविडेंड इज नेवर गिवन ऑन मार्केट वैल्यू. लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, चलो 900 पे अभी 200% डिविडेंड मतलब 1800 रुपए हो गया, लेकिन ऐसा तो है नहीं. डिविडेंड इज ऑलवेज पेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, सो डू रिमेंबर दिस. सेकंड thing, when I purchase any shares, I usually purchase not for dividend but for capital gain or capital appreciation. जैसे मैंने आपको समझाया, आपने 100 में खरीदा, वैल्यू 500 हो गई, 1000 हो गई, फिर आपने बेचने का डिसाइड किया 1000 पे और आपने बेच दिया. यू हैड अ गुड कैपिटल अप्रिसिएशन, अबाउट 10 टाइम्स, आपको 10 टाइम्स कैपिटल अप्रिसिएशन मिला. और तीसरा आपको रिटर्न मिलता है इन्वेस्टमेंट करने के बाद इक्विटी शेयर्स में, दैट इज यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट बोनस शेयर्स. Bonus shares is nothing but the process of capitalization of profits of the company. कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ, कंपनी चाहता है कि डिविडेंड भी दे दे शेयर होल्डर्स को, और कंपनी को प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुआ, इसलिए कंपनी डिविडेंड के साथ बोनस शेयर भी देना चाहती है शेयर होल्डर को. So in this case, do remember, company is going to declare bonus shares, and bonus shares is nothing but the process of कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स ऑफ द कंपनी. आप बोलेंगे प्रॉफिट तो समझ में आ रहा है, ये रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व इज नथिंग बट द प्रॉफिट व्हिच हैज बीन kept aside by the business for a number of years for meeting some contingencies which are unforeseen, which are unimaginable. तो उसके लिए रिजर्व बनाता है कंपनी हर साल. तो कभी कभार प्रॉफिट नहीं हुआ तो आउट ऑफ दिस रिजर्व एज वेल कंपनी कैन पे द डिविडेंड और बोनस शेयर्स. तो याद रखिए, डिविडेंड is nothing but part of profit after tax which is paid by the company to the shareholders. Capital appreciation is nothing but increase in the value of shares because of demand and supply of the share. Rather more demand and less supply, तभी प्राइस बढ़ेगी. ये इकोनॉमिक्स का फिनोमेनन बोलता है. एंड दैट वे अराउंड वी नीड टू नो दैट ऑलवेज द मार्केट वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ मोर डिमांड एंड लेस सप्लाई. और तीसरा है बोनस शेयर्स. बोनस शेयर्स आर डिक्लेयर्ड एज नथिंग बट पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर profit. It is the process of capitalization of your profits or process of capitalization of your reserves. उसी को bonus shares बुलाते हैं. So before investing into equity shares, do remember everybody, though it is risky, but it is going to give you handsome returns in 3 terms. Number 1 is dividend, which is always declared out of PAT. Number 2 is nothing but capital gain or capital appreciation. That is nothing but the increase or decrease in the value of the share because of demand and supply of the shares. And number 3 is nothing but the bonus shares are issued by the company because of, you can say that, excess profit or profit which is not imagined by the company, and company is going to give you dividend as well as bonus shares. तो इस बेसिक के साथ चालू करते हैं. इक्विटी शेयर्स की जर्नी बड़ी कंफर्टेबल और इंपॉर्टेंट जर्नी है, एंड एवरीबडी मस्ट नो, दो फ्रॉम फाइनेंस और नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड. मैं तो बोलता हूँ नॉन फाइनेंस या फाइनेंस, हमें बनाना तो पैसा ही है. So invest good amount into good number of shares by doing certain study, fundamental and technical analysis, और अच्छा पैसा आप इससे बना सकते हैं, by which you can be always financially independent. The need of the day, the need of the hour, the need of the age is to be financially independent by everybody. तो चलिए financially independent आपको बनाने की राह में एक कदम रखते हैं, और let's discuss what is the features, what are the pros and cons. This is academic point of view. वैसे तो शेयर में इन्वेस्ट करने से क्या क्या मिलेगा मैंने आपको पहले ही बोल दिया, और ये भी याद रखिए इक्विटी शेयर्स को रिटर्न सबसे आखिरी में मिलते हैं. दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. तो इक्विटी शेयर्स आर आल्सो कॉल्ड एज कॉमन शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स, एंड दिस इज द कैपिटल व्हिच इज रेज्ड बाय द कंपनी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. याद रखिए, ये ऐसा कैपिटल है कंपनी जो लॉन्ग टर्म के लिए रेज करती है, और इसी को परमानेंट कैपिटल बुलाया जाता है. Why? Because once company issue the equity shares, company never take those equity shares back and give the money back to the investors unless and until company is going to close down or liquidate itself by any reason. Liquidation का मतलब ये है closing down the business. तो जब तक कंपनी बंद नहीं करेगा खुद को, तब तक कंपनी शेयर वापस देके आपसे पैसा वापस, आपको शेयर वापस लेगा और आपको पैसा वापस देगा. ऐसा कंपनी नहीं करेगा. तब तक ये इक्विटी शेयर्स आपको खुद को ट्रेड करने हैं. कहाँ पे? आपके पास बड़ा आसान रास्ता है कि आप इसको स्टॉक मार्केट में बेच सकते हैं,
on the current price. Obviously, it may be more than for what you have purchased or less than for what you have purchased. It depends again on demand and supply. So two things to remember: equity shares are also called as common or ordinary shares, and second, these equity shares are also called as, at the same time, the most risky one from investors point of view. The reason being is that the returns will be given to the equity shareholders in the end, after paying to all the debt capital holders, after paying to preference shareholders. आखिरी में पैसा दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, फिर वो प्रॉफिट हो या फिर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल हो। इसको परमानेंट कैपिटल क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि कंपनी ने एक बार शेयर इश्यू किए तो कंपनी वापस नहीं लेता शेयर और पैसे वापस नहीं देता जब तक कंपनी खुद को बंद ना करे, लिक्विडेट ना करे। फिर तब तक आपके पास ये ऑप्शन है दैट यू कैन ट्रेड दीज शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट either on BSE or NSE, and obviously you can get your money back along with handsome amount of profit. So that is what the equity shares. Equity shares are also called as common or ordinary shares, and at the same time it is permanent capital for the company. At the same time it gives ownership to the shareholder, and in the terms of one equity share is equal to one vote. तो याद रखिए इसको, एक इक्विटी शेयर को एक वोट आपको मिलेगा, एंड दिस इज हाउ इट इज गिवन। ये देखिए, वन इक्विटी शेयर इज इक्वल टू वन vote. So that is how equity shareholders themselves are the owners of the company. Equity shareholders ही कंपनी के owners है, और at the same time equity shares are absolutely getting the ownership rights to appoint the board of directors and to run the company in the manner they want. So that is what the beginning given here. इसी के साथ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, these are called as रेसिडुअल ओनर्स। रेसिडुअल ओनर्स क्यों? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जब सबसे पहले कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी हैज टू पे द इंटरेस्ट on the loan or on the borrowed capital which the company has taken from outsiders, like bank loan, like bonds or debenture holders or public deposit holders. सबसे पहले इनको पैसा दिया जाता है। इनमें भी दो कैटेगरीज है, एक अनसिक्योर्ड, दूसरा सिक्योर्ड। आजकल कंपनी कोई बैंक अनसिक्योर्ड लोन देती नहीं है, तो ऑब्वियसली सिक्योर्ड ही देती है। सिक्योर्ड को पैसे पहला दिया जाता है। सिक्योर्ड का मतलब है दैट योर असेट्स आर हाइपोथिकेटेड और मॉर्गेज्ड with the bank, so that in case of default of payment bank can liquidate those assets and take their money back. इसलिए फिर obviously ये बड़ा safe source of investment हुआ। अगर आप FD करते हैं या आप बैंक को या कंपनी को लोन देते हैं in terms of investing into bonds, इसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। अभी इक्विटी पे चलते हैं। इक्विटी आर कॉल्ड एज रेसिडुअल ओनर्स, इक्विटी आर कॉल्ड एज equity shareholders and owners of the company because these carry voting rights. One equity share is equal to one vote, and absolutely these are going to appoint the board of directors who in turn can run the company on behalf of the owners, that is equity shareholder. तो इतने सारे बेनिफिट है इक्विटी शेयरहोल्डर्स के, लेकिन डिसएडवांटेज एक है, इक्विटी शेयरहोल्डर्स को रेसिडुअल ओनर बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले इंटरेस्ट दिया जाएगा सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड borrowed कैपिटल होल्डर्स को, उसके बाद डिविडेंड दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, हु आर द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स ऑफ द कंपनी, फिर उनको डिविडेंड दिया जाएगा विच इज ऑलवेज फिक्स्ड। उसके बाद अगर प्रॉफिट में पैसा बचता है देन दैट इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। हेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड एज रेसिडुअल ओनर्स। एट द सेम टाइम इक्विटी शेयर्स आर आल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी, क्योंकि इनका डिविडेंड कम ज्यादा होते रहता है डिपेंडिंग ऑन प्रॉफिट। हो सकता है कभी मिले कभी ना मिले, हो सकता है कभी कम मिले कभी ज्यादा मिले, क्योंकि पहले पैसा पे करना है किसको? यस, दैट इज क्रेडिटर्स, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स इन टर्म्स ऑफ रिटर्न आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब बात आती है अगर कंपनी बंद हो रही है तो कैपिटल रीपेमेंट की। तो अगर कंपनी बंद हो रही है बाय एनी रीजन अनफॉर्चुनेटली, देन इन दैट केस आल्सो फर्स्ट मनी विल बी पेड टू ऑब्वियसली borrowed कैपिटल होल्डर्स, उसमें सिक्योर्ड, फिर अनसिक्योर्ड, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और आखिरी में अगर पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर। इसका सीधा साधा मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर प्राइमरी रिस्क बियरर्स, दीज आर रेसिडुअल ओनर्स, एंड देयर क्लेम ऑन इनकम एंड क्लेम ऑन असेट इज द लास्ट क्लेम और द रेसिडुअल क्लेम। बट ये सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स एक टेम्पटेशन में करता है। ऑब्वियसली दैट रिटर्न इज फैंटास्टिक एंड दैट रिटर्न इज यू कैन से somehow परमानेंट एज वेल, इसलिए तो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार है। और रिटर्न्स क्या है मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले। नंबर वन, डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ पैट, and the dividend rate always higher than either on preference shares or compared on borrowed capital holders. तो rate of dividend जो होता है वो फिर आप
प्रेफरेंस को जो देते हैं और बारोड कैपिटल होल्डर्स को जो इंटरेस्ट देते हैं उससे ज्यादा होता है. सो दैट इज मोटिवेशन नंबर 1. मोटिवेशन नंबर 2, इफ द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल, फिर शेयर का वैल्यू 100 से 500 या 1000 हो सकता है और फिर आप डिविडेंड को तो छोड़ ही दो, इतना अच्छा आपको रिटर्न मिल रहा है. एंड नंबर 3, इवन यू कैन गेट बोनस शेयर. सो दीज आर द एडवांटेजेस फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ these are the advantages from the investors point of view for investing into equity shares. तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इक्विटी में तो रिस्की जरूर है लेकिन बहुत सारे रिटर्न्स देगी. एंड एब्सोल्युटली नॉलेज लेके पढ़ाई करके अच्छे शेयर चूज करके अपने उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. वहां पे 2 सेगमेंट्स है एवरीबडी, क्योंकि पैसा तो हर एक को बनाना है. एक तो आप इस्टेब्लिश कंपनी में पैसा लगा सकते हैं जैसे रिलायंस है, HDFC बैंक है, कोटक बैंक है एंड सो ऑन. बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये कितना ग्रो होगा. और दूसरा आप चूज कर सकते हैं ऐसी कंपनियां जो अपकमिंग है, जो बड़ी कंपनीज है, जो बड़ी प्रॉमिसिंग है, जिनका छोटा बिजनेस आज है लेकिन वो बड़े अच्छे रिटर्न प्रॉमिस कर रही है और फ्यूचर इनका बड़ा ब्राइट दिखता है और उनका शेयर आज 25 रुपए पे है, 50 रुपए पे है, किसी का 65 रुपए पे है. तो ऐसे कंपनी के शेयर खरीदना ज्यादा मुनासिब होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको देगा. एंड एट द सेम टाइम द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज आल्सो वेरी लेस, क्योंकि शेयर अगर 50 रुपए में है, आज अगर आपको MRF खरीदना है, बड़ा अच्छा शेयर है बट 1 लाख रुपए का एक शेयर है तो कॉमन इंसान कितना खरीद पाएगा. So that is the issue. So you can invest into these 2 modes there. That is always investment point of view. So I hope you are getting this. What are the benefits and what are the disadvantages for investing into equity shares, common shares or ordinary shares from investors point of view. और एक advantage है, your liability as a owner, as a shareholder is limited to the number of shares held by you. तो अगर कंपनी को करोड़ों का लॉस हो गया तो भी आपका पैसा उतना ही डूबेगा जितना आपने लगाया था, जितने नंबर ऑफ शेयर आपने खरीदे थे. चलो मान लेते हैं आपने 500 शेयर खरीदे विच इज देयर ऑन द स्क्रीन और पर शेयर वैल्यू थी 50 रुपए. तो 500 इंटू 50 आपने इन्वेस्ट किए स्टूडेंट्स 25,000 रुपए. तो आपका लॉस इतने पे ही लिमिटेड रहेगा. दो यू आर द ओनर, your liability is limited to the number of shares held by the shareholder. So that is another advantage of investing into equity shares from investors point of view. हम investors point of view अभी देख रहे हैं, कंपनी का बाद में देखते हैं. तो investors point of view में advantages क्या है? Advantage number 1, rate of dividend is high. Advantage number 2, there is a possibility that you will get good amount of capital appreciation that is due to demand and supply or due to more demand and less supply in the shares because of performance of the company. आप बोलेंगे ये डिमांड क्यों बढ़ेगा और सप्लाई क्यों लेस रहेगा शेयर्स का? आपके पास अगर किसी अच्छे कंपनी के शेयर्स और आपको पता है कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है तो आप और खरीदना चाहेंगे, ना कि आपके पास जो है वो बेचना चाहेंगे. तो इसकी वजह से मार्केट में एक सेंटीमेंट होगा कि लोग खरीदने वाले ज्यादा होंगे और बेचने वाले कम होंगे. सो ऑब्वियसली डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज less. Same is the logic which is applied in the common market there while purchasing tomatoes and onion and all those things. टोमेटो और ओनियन के प्राइसेस क्यों बढ़े थे रिसेंटली? टोमेटो के प्राइसेस क्यों बढ़े थे? रीजन इज एब्सोल्युटली मोर डिमांड एंड लेस सप्लाई. So that is the reason in case of shares as well. तो मैं एडवांटेज आपको बता रहा था from investors point of view for investing into equity shares. Number 1, rate of dividend is high. Though it is variable income security, कभी डिविडेंड मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी कम मिलेगा, कभी ज्यादा मिलेगा. Second, there is a huge chance of capital gain or of capital appreciation. Third, you will be always getting bonus shares. Fourth, you will be the owners, you will be the equity shareholders, you are the common shareholders, you are the ordinary shareholders, and you have the sole right to appoint the board of directors who in turn will manage the business on behalf of the owners by calling into an AGM, that is called as annual general meeting. में आपको वोटिंग का राइट होता है. 1 equity share is equal to 1 vote. So these are all advantages from equities point of view. इनमें सबसे बड़ा एडवांटेज है, याद रखिए, कैपिटल गेन और कैपिटल अप्रिसिएशन. आजकल लोग बाकी सारी चीजों को भूल जाते हैं. बोलते हैं शेयर का प्राइस मैंने अगर 50 का खरीदा और वो 500 हो गया, बस वारे न्यारे हो गए. सो दैट इज द बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू एज फार एज इन्वेस्टमेंट इनटू इक्विटी शेयर्स आर कंसर्न्ड. अब बात करते हैं बेसिक फीचर्स की और आगे चलते हैं. इवन वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्स देयर. कॉन्स भी इसके देख लेते हैं. अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला डिसएडवांटेज है कि ये वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी है इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी ज्यादा मिलेगा, कभी कम मिलेगा. दैट इज वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी इज अ disadvantage or con from investors point of view. Second disadvantage is you are the residual owners. Equity shareholders are the residual owners. They have the last claim on the profit as well as on the repayment of capital. सबसे आखिरी में उनको प्रॉफिट मिलेगा.
इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, और सबसे आखिरी में उनका कैपिटल वापस आएगा. सो दैट इज व्हाट द डिसएडवांटेज फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. कुछ फीचर्स उन्होंने दिए, क्विकली देखते हैं. प्राइमरी रिस्क बियरर्स, जैसे मैंने आपको बोला, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा सबसे आखिरी में मिलता है. फिर वो बात आती है क्लेम ऑन इनकम की, जैसे कि डिविडेंड की, या क्लेम ऑन असेट्स की. अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ओनर्स को पैसा सबसे आखिरी मिलेगा. सबसे पहले पैसा दिया जाएगा क्रेडिटर्स को, मतलब द बारोअर्स और द लेंडर्स हु हैव गिवन मनी टू द कंपनी. तो जिनसे आपने पैसा उठाया है बोरोइंग के फॉर्म में या लोन के फॉर्म में, सबसे पहले कंपनी पैसा उनका वापस करेगा. उसके बाद कंपनी पैसा देगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बाय सीक्वेंस, और आखिरी में पैसा देगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को. ड्यू टू दिस इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द प्राइमरी रिस्क बियरर्स. तो इसकी वजह से प्राइमरी रिस्क बियरर है. एक तो वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी, दूसरा कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो भी आखिरी में ही मिलेगा, बिकॉज सीक्वेंस में आप आखिरी में है एज कंपेयर्ड टू क्रेडिटर्स एंड एज कंपेयर्ड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. क्रेडिटर्स का सीधा साधा मतलब है द लेंडर्स हु हैव गिवन मनी टू यू, या जिनसे कंपनी बोल के आपने पैसे जिनसे उधार लिए, फिर वो बैंक हो सकता है या कॉमन लोग हो सकते हैं जिनसे आपने बॉन्ड और डिवेंचर जिनको इश्यू किया और पैसा लिया है. तो प्राइमरी रिस्क बियरर इज देयर. सेकंड, बेसिस फॉर लोन्स. ये बड़ा अच्छा एडवांटेज है, फीचर बड़ा अच्छा है कि अगर आपने 1 करोड़ के शेयर्स इश्यू किए मार्केट में, इसका सीधा साधा मतलब है आपका रेपुटेशन बड़ा अच्छा है, क्योंकि सेबी डजंट गिव द परमिशन ऑफ एन आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें आप पहली बार शेयर इश्यू करते हैं कॉमन इन्वेस्टर्स को. तो सेबी तभी परमिशन देता है इफ यू आर हैविंग अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 5 years. अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड 5 साल का है, मतलब आपकी कंपनी 5 साल से है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रही है और उसमें से डिविडेंड भी दे पा रही है इन्वेस्टर्स को, प्रोमोटर्स को, तभी आप इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं थ्रू एन आईपीओ एज पर सेबी. तो अगर आपने 1 करोड़ के शेयर ऑलरेडी इश्यू कर लिए, मतलब सेबी ने आपको परमिशन दिया, तो 1 करोड़ का लोन भी आपको बैंक आसानी से दे सकता है, बिकॉज issuing equity shares means making reputation in the business. SEBI as a regulator, that is Securities and Exchange Board of India, will not allow companies unless and until they meet a particular criteria, because SEBI is always there to protect the interest of the investors. हमें सबको पता है SEBI का जन्म इसलिए हुआ है, SEBI has taken birth as a law there कि SEBI इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे. तो इसलिए SEBI चाहता है कि ऐसी कंपनी आईपीओ करे जिनका 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो, कम से कम उसमें 3 साल कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो, और उन्होंने डिविडेंड दिया हो अपने प्रोमोटर्स को, तभी आईपीओ का परमिशन दिया जाता है. अगर आपने आईपीओ के थ्रू शेयर बेचे और कैपिटल रेज किया, उतना ही कैपिटल आप रेज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ लोन्स और इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द आउटसाइडर्स. सो इट इज द बेसिस फॉर लोन्स, दैट इज द सेकंड पॉइंट गिवन. थर्ड पॉइंट इज क्लेम ओवर रेसिडुअल इनकम. सेम पॉइंट रिपीटेड अगेन, that equity shareholders are entitled to get dividend out of profit after tax. अब ये dividend क्या है? Dividend is nothing but part of profit which is paid by the company to the shareholders. तो याद रखिए, अगर dividend किसी को पता नहीं है, dividend is nothing but the part of profit which is paid out of the profit after tax. So that is the definition of dividend for you. Dividend is part of PAT, that is profit after tax. So it is a good technology to write down and to rub. Dividend is part of profit after tax, or earning after tax, or net profit. तो हम डिविडेंड कैसे देते हैं? या तो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से देते हैं, या तो आप नेट प्रॉफिट से देते हैं, या तो आप अर्निंग आफ्टर टैक्स से डिविडेंड देते हैं. अब ये डिविडेंड जब दिया जाता है तो ये आखिरी में दिया जाता है. दिस डिविडेंड इज गिवन एट द एंड बाय द कंपनी टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. इसके पहले कंपनी क्या देती है? इसके पहले कंपनी देती है इंटरेस्ट टू ऑल द बोरोड कैपिटल होल्डर्स. कंपनी इंटरेस्ट देती है जो भी बोरोड कैपिटल होल्डर्स है उनको. उसके बाद कंपनी देती है डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और आखिरी में जो कुछ प्रॉफिट बचता है दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर. सो दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल क्लेम. क्लेम ऑन जो आपका इनकम है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, प्रॉफिट पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, वो रेसिडुअल क्लेम है. सिमिलरली दिस क्लेम इज द लास्ट क्लेम ऑन कैपिटल बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स. अगर कंपनी किसी भी वजह से बंद हो रही है, कंपनी इज गोइंग टू बी लिक्विडेटेड और इट इज गोइंग टू बी शट डाउन, then the amount will be paid back first to the creditors, that is to the companies or to the banks from whom you borrowed it, and second to the preference shareholders, and last to the equity shareholders. इसीलिए बचा कुचा क्लेम आपका होता है, बट ये बचा कुचा क्लेम इन्वेस्टर एक्सेप्ट इसलिए करता है क्योंकि उसको रिटर्न बड़े तगड़े मिल रहे हैं
in equity. So dividend is part of profit after tax, earning after tax or net profit. याद रखिए everybody, net profit is nothing but the distributable profit. नेट प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट होता है जो आप एंजॉय कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट को हम डिस्पोजेबल इनकम भी बुला सकते हैं। डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या है? सपोज मेरा सैलरी 5 लाख है, लेकिन उसमें से मेरी सारी ईएमआई और खर्चा जाके मुझे 4 लाख तो ऐसे ही लग जाते हैं सारी चीजों को। ईएमआई 3 लाख का है और 1 लाख का बाकी सारे एक्सपेंसेस मेरे चले जाते हैं टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो बचा कितना? 5 माइनस 3 माइनस 1, ऑब्वियसली 5 में से 4 जाने के बाद 1 लाख रुपए बचता है। ये 1 लाख रुपए मैं फ्रीली खर्च कर सकता हूँ, इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज माय डिस्पोजेबल इनकम। उसी तरह से कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स। मतलब कंपनी ने सारे एक्सपेंसेस दिए, इंटरेस्ट दिया, उसके बाद गवर्नमेंट का टैक्स भी दिया, एंड ऑब्वियसली अब जो प्रॉफिट बचेगा कंपनी कैन एंजॉय, कंपनी कैन री इन्वेस्ट, कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। याद रखिए डिविडेंड इज ऑलवेज पेड आउट ऑफ net profit or profit after tax or earning after tax, no matter it is preference dividend or equity dividend। हाँ, ये जरूर है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो दिस इज क्लेम ऑन रेसिडुअल इनकम। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस, एंड डू रिमेंबर डिविडेंड इज ऑलवेज पेड ऑन फेस वैल्यू, पार वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, व्हिच इज यूजुअली ₹1, 2 और 10 मैक्सिमम। मार्केट वैल्यू शेयर की 1 लाख हो सकती है, 10,000 हो सकती है, 900 रुपए हो सकती है, लेकिन फेस वैल्यू बड़ी कम होती है। हाइयर प्रॉफिट एंटिसिपेटेड है कि प्रॉफिट आपको ज्यादा मिले बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर को आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी आप फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देंगे, लेकिन जब बात आती है इक्विटी शेयर होल्डर को, इसीलिए इनको बुलाया जाता है वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी। तो इनको या तो कम मिलेगा, और ज्यादा प्रॉफिट है तो ज्यादा भी बहुत मिलने के चांसेस है। दैट इज हाउ हायर प्रॉफिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स एंड द रेट ऑफ डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर फिक्स्ड। सेम पॉइंट ये बोल रहे हैं कि जब भी आप इंटरेस्ट देते हैं और प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं तो उनका रेट फिक्स्ड होता है, बट जब आप डिविडेंड देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उनका रेट फिक्स नहीं होता। आपके पास ज्यादा प्रॉफिट है तो आप ज्यादा रेट से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रॉफिट ही नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि इस बार डिविडेंड नहीं मिलेगा, ये भी सच है। बट ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जब आपको ज्यादा प्रॉफिट हो तो आप ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न से पे करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। तो दैट इज हाउ इट इज पॉसिबल दैट दे विल बी ऑलवेज गोइंग टू गेट हायर प्रॉफिट, बिकॉज दे आर द ओनर्स, दे आर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। आखिरी में जो कुछ बचेगा सारा उनका बचेगा। तो अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो वो ज्यादा ही प्रॉफिट में रहेंगे एब्सोल्युटली। प्रेफरेंस और बारोड कैपिटल होल्डर्स को तो उतना ही मिलेगा जितना डिसाइड हुआ है, फिर कंपनी को प्रॉफिट भी हुआ और लॉस हुआ तो भी उतना मिलेगा। दैट इज हाउ हायर प्रॉफिट इट इज। लेकिन ये फिक्स्ड इनकम नहीं है, प्रॉब्लम यही है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो मिलता है वो फिक्स्ड इनकम नहीं है, जबकि बारोड कैपिटल होल्डर्स या क्रेडिटर्स आप बुलाएंगे या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाएंगे तो उनका जो डिविडेंड है या रिटर्न है उनका फिक्स्ड है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का फिक्स्ड नहीं है। सो दैट इज द डिफरेंस। सो हायर प्रॉफिट इज वेरी मच पॉसिबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट इज कंट्रोल। कंट्रोल तो ओनर का रहेगा। हु इज द ओनर? यस, दैट इज राइट, ओनर्स आर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ओनर्स का ही कंट्रोल रहेगा। तो ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग द सोल राइट टू अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड टू रन द कंपनी द वे you want to run it, and obviously all these things will be decided into the AGM, that is annual general meeting, which is again called by the owners in terms of shareholders, और वहीं पे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ डिसीजन होंगे। उसके बाद प्रीएम्प्टिव राइट्स। कंपनी अगर चाहता है कि कंपनी को और कैपिटल इश्यू करना है बाय इश्यूइंग मोर इक्विटी शेयर्स आफ्टर द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ होने के बाद कंपनी फिर से और शेयर इश्यू करना चाहता है तो कंपनी कैन इश्यू दीज शेयर्स इन टर्म्स ऑफ राइट्स इश्यू और प्रीएम्प्टिव राइट्स। तो प्रीएम्प्टिव राइट्स को ही हम क्या बुलाते हैं, याद रखिए, द सेम इज कॉल्ड एज राइट्स इश्यू। सो इफ कंपनी वांट्स टू रेज मोर कैपिटल by issuing more number of equity shares after IPO, then company can do it in terms of rights issue। इसी को preemptive rights बुलाते हैं। राइट्स इश्यू में अगेन और एक फायदा है इन्वेस्टर्स को। अगर कंपनी शेयर्स बेच रहा है मार्केट में 1000 रुपीज पर शेयर, तो कॉमन इन्वेस्टर्स को 1000 रुपए पर शेयर में बेच रहा है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है, यही शेयर उनको 800 में 850 में बेचेंगे एज नथिंग बट रिटर्न ऑफ लॉयल्टी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो इसको प्रीएम्प्टिव राइट्स बुलाते हैं, राइट्स इश्यू बुलाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने बोला कि हमें नहीं खरीदना है, then these shares can be issued or sold to the common people at ₹1000 per share। आपने अगर एग्री कर लिया कि हाँ हम 850 में खरीद लेंगे, बाहर देने की कोई जरूरत नहीं है, हम ही ओनर बने रहेंगे, राइट्स इश्यू भी हम ही लेंगे, ऑब्वियसली इट इज एडवांटेजेस फॉर यू। क्योंकि देखिए मार्केट में 1000 रुपए में मिल रहा है, आपको 850 में मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे भी 150 पर शेयर का फायदा, ये प्रैक्टिकल है। इसी तरह से चीजें चलती है एज फार एज द कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस आर कंसर्न।
So the provisions of Companies Act give preemptive rights to the shareholders. ये जो existing equity shareholders है उनको ये rights देते हैं. Preemptive का मतलब rights issue है. This right states that whenever a company plans to issue new equity shares, first of all it must be offered to the existing equity shareholders, and if they are not ready and if they refuse to buy it, then only it can be given to the outsiders or the common people, and that is what the feature of preemptive rights is given to the existing shareholders, which they can exercise, and absolutely it will be very advantageous for them to purchase these shares. It is permanent capital as well. मैंने जैसे आपको बोला, आपने अगर शेयर एक बार खरीद लिए तो कंपनी आपको पैसा वापस नहीं देगा शेयर वापस लेके. फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, आप कैसे ये पैसा रिलीज कर सकते हैं? तो आप BSE या NSE पे ये शेयर ट्रेड कर सकते हैं. जो करंट मार्केट प्राइस है उस पे आप उसको बेच सकते हैं. तो करंट मार्केट प्राइस हो सकता है आपने जिस पे खरीदा उससे ज्यादा हो या उस पे कम हो. आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है. कंपनी पैसा वापस नहीं आपको देगी और शेयर वापस नहीं लेगी unless and until company will be entering into a stage of closing down or liquidation. It is called as liquidation. का सीधा साधा मतलब है it is closing down the business, paying all the liabilities by selling all the assets. liquidation का सीधा मतलब है बिजनेस को बंद करना, आपके असेट बेचना और जो पैसा आए उससे liability पे करना और बोल देना कि we are done, we are shut down. So that is how permanent capital it is. And the company doesn't commit to reduce the money or pay dividend at a fixed rate. ये तो मैंने आपको बताया है, कंपनी यहाँ पे फिक्स रेट पे डिविडेंड देता ही नहीं, इसलिए तो इसको वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी बोलते हैं. बट फिर से आते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स पे. हमने इन्वेस्टर्स के तो डिस्कस कर ही लिए. इन्वेस्टर्स के मेरिट्स हमने क्या डिस्कस किए थे, इफ यू रिमेंबर. इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर very handsome mode of investment for investment. Why? Because it gives higher rate of dividend as compared to rate of interest and rate of dividend on preference shares. Second, capital gain or capital appreciation is the very big possibility of handsome returns there into equity. Number 3 is bonus shares. Number 4, you are going to get ownership rights. One equity share is equal to one vote. Along with that, you are going to appoint or nominate the board of directors, and the business will be run by the equity shareholders through the board of directors. तो ये सारे advantages है. Disadvantage क्या है investors point of view के? The number 1 is residual claim, last claim on the income and on assets. तो equity shareholders को dividend जो मिलेगा वो सबसे आखिरी में मिलेगा, after payment to creditors and after payment to preference shareholders. उसी तरह से अगर कंपनी किसी भी रीजन से बंद होती है, then again first money will be paid back to the borrowed capital holders, that is banks and debenture holder, then money will be paid to the preference shareholders, and finally it will be paid to the equity shareholders. So this is the disadvantage in terms of residual income or last claim on income and assets. दूसरा हमने देखा था variable income security. जब भी आपको dividend मिल रहा है which is declared on face value of the share by the company, absolutely that dividend may be less, may be more, it may not be there at times. So that is how you can say that it is a variable income security. ये भी disadvantage है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. और दूसरा डिसएडवांटेज था लास्ट क्लेम ऑन इनकम, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड लास्ट क्लेम ऑन असेट्स. कंपनी अगर क्लोज होती है तो आपको कैपिटल भी सबसे आखिरी में मिलेगा. तो यू आर द प्राइमरी रिस्क बियरर्स. तो ये दिमाग में बिठा के रखिए. अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू के बाद कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू को एडवांटेज क्या है इक्विटी शेयर इश्यू करने का. पहला एडवांटेज है परमानेंट कैपिटल. कंपनी ने एक बार शेयर इश्यू कर दी है, कंपनी कैन टेक बैक स्टेज. अभी तो पैसा वापस देना नहीं है इनटू लाइफ टाइम. और लाइफ टाइम तो कंपनी तो ऐसी गोइंग कंसर्न वाली है, मतलब हम रहे ना रहे कंपनी तो रहेगी. तो दैट वे अराउंड ऑब्वियसली कंपनी के लिए परमानेंट कैपिटल है. एक बार शेयर इश्यू कर दिए तो कैपिटल तो आपका रेज हो गया और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. इन्वेस्टर को चाहिए पैसा वापस तो कैपिटल मार्केट में बेच सकते हैं, BSE NSE पे अपना पैसा वापस ले सकते हैं. परमानेंट कैपिटल इज द एडवांटेज फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 1. सेकेंड एडवांटेज इज अगेन वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी, क्योंकि कंपनी के लिए ये मैंडेटरी नहीं है डिविडेंड देना इक्विटी पे. प्रॉफिट है तो देंगे, नहीं प्रॉफिट है तो नहीं देंगे. दैट इज हाउ द वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी इज डिसएडवांटेज फ्रॉम इन्वेस्टर्स बट इट इज एडवांटेजेस फॉर कंपनी. तो ये दूसरा एडवांटेज है कंपनी के लिए. पहला है परमानेंट कैपिटल. तीसरा एडवांटेज है ऑब्वियसली इट इज अ सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल और फिक्स कैपिटल. तो परमानेंट तो हमने बोल ही दिया. नो ऑब्लिगेशन फॉर पेइंग डिविडेंड एंड प्रोवाइड्स क्रेडिट स्टैंडिंग. जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपने 1 करोड़ के इक्विटी शेयर इश्यू किए मार्केट में इतनी सारी फॉर्मेलिटी सेबी के साथ पूरी करके, तो 1 करोड़ का आपको लोन भी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आपका क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट स्टैंडिंग, क्रेडिट रेपुटेशन मार्केट में
बढ़ेगा. So there are three advantages. Number one, permanent and fixed capital. Number two, variable income security, that is no obligation to pay dividend. And number three, it provides a क्रेडिट स्टैंडिंग और क्रेडिट रेपुटेशन टू द कंपनी. ये इन्वेस्टर्स ये एडवांटेजेस है कंपनी के लिए. इन्वेस्टर्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने डिस्कस ही कर ही लिए पहले. और अभी देखते हैं और क्या हो सकता है. नो चार्ज ऑन असेट्स, ये अगेन कंपनी के लिए है. कंपनी अगर इक्विटी शेयर बेचता है तो ऐसा कोई वहां पे कंपलसरी रूल नहीं है कि अगर आप पैसा पे नहीं कर पाएंगे कुछ लॉसेस होने के बाद तो फिर शेयर होल्डर्स के असेट को भी मॉर्गेज किया जाएगा. ऐसी कोई प्रोविजन नहीं. जैसे मैंने आपको बोला, यूर ownership is limited to the number of shares held by you as an equity shareholder. This is the best advantage of a joint stock company. जब हम joint stock company की बात करते हैं जहाँ पे ये equity shareholders होते हैं तो यहाँ का एक बेस्ट एडवांटेज है. Being owner, your liability is limited to the number of shares held by you and you are not responsible for more than that. आप उससे ज्यादा responsible है ही नहीं. और मैनेजमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक है. तो ये पांचों एडवांटेज है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से. नंबर वन, no obligation to pay dividend. Number two, fixed or permanent capital. Number three, it is going to create credit base for you, credit standing for you. Number four, there won't be any charge on the assets. And number five, you will be always having democratic management which is run by the equity shareholders through the board of directors of the company. Disadvantage देखते हैं इक्विटी शेयर्स के किसके लिए. ऑब्वियसली ये कंपनी के लिए ही है. इन्वेस्टर्स के हमने देख लिए क्या है. नंबर वन, हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिकॉज आपको रेट ऑफ डिविडेंड जो देना है वो बॉरोड कैपिटल होल्डर से ज्यादा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ज्यादा है. तो ये डिसएडवांटेज है कंपनी के लिए कि कंपनी हाई रेट ऑफ डिविडेंड दे रही है. उसी के साथ याद रखिए, डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. मतलब आपने टैक्स पहले पे कर दिया है और बाद में आप डिविडेंड दे रहे हैं. मतलब डिविडेंड आपका कोई टैक्स नहीं बचाएगा. दो डिविडेंड इज योर एक्सपेंडिचर एज अ कंपनी, लेकिन ये टैक्स आपका नहीं बचाएगा. ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंटरेस्ट आपका टैक्स बचाता है. जब भी आप एज अ कंपनी लोन लेते हैं किसी बैंक से और उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, जितना इंटरेस्ट ज्यादा उतना टैक्स कम. तो इंटरेस्ट इज अ टैक्स सेविंग और इंटरेस्ट इज गोइंग टू ऑफर यू टैक्स शील्ड, बट डिविडेंड इज नॉट गोइंग टू सेव एनी टैक्सेस बिकॉज डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जबकि इंटरेस्ट इज पेड आउट ऑफ पीबीआईटी और ईबीआईटी. इंटरेस्ट इससे देते हैं, याद रखिए, which is called as profit before interest and tax or earning before interest and tax. लेकिन डिविडेंड देते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से. मतलब टैक्स तो पे कर दिया, मतलब डिविडेंड पेमेंट आपका कोई टैक्स बचाने वाला नहीं है. तो इट इज कॉस्टली फॉर द कंपनी एज फार एज कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न. सेकंड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल एंड ऑब्वियसली देयर आर लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व. जैसे मैंने आपको बोला, शेयर इश्यू करना आसान नहीं है. SEBI wants that you should have a track record of 5 years. Out of 5 years, there should be consistent 3 years profitability, and obviously every year there should be profit, and out of profit dividend is paid to the shareholders. So ये सारी formality complete करना आसान नहीं है. So this is disadvantages. Disadvantage number one is high cost of capital for the company. Second is legal formalities for the company, and third is dilution of control and ownership. आप जितने number of share बढ़ाएंगे या जितने ज्यादा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आप इश्यू करेंगे उतने ओनर्स बढ़ेंगे, और ऑब्वियसली फिर नंबर ऑफ ओनर्स बढ़ेंगे तो उनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग है, वो कम होता जाएगा. क्यों? क्योंकि आपने कैपिटल जिस प्रोपोर्शन में बढ़ाया उसी प्रोपोर्शन में इमीडिएटली प्रॉफिट नहीं बढ़ता. इट टेक्स टाइम. ऐसा जरूरी है क्या कि आप पहले 5,000 ही ओनर थे और अब आप 5 लाख हो गए तो उसी साल में प्रॉफिट इतना बढ़ेगा क्या कंपनी का एक साल में? नहीं, दैट डजंट हैपन. So this is what the reason that this is called as a disadvantage. Disadvantage number one is high cost of capital for the company. Number two, dilution of control and ownership. And number three is legal formalities. So this is how the company's point of view is there for advantages and disadvantages. Investors का तो बड़ा बढ़िया है, हमें पता है इन्वेस्टर ने तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए, अच्छे शेयर लेने चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड के लिए लेने चाहिए और भूल जाने चाहिए, तब जाके बहुत अच्छा पैसा बनेगा as far as equity shares are concerned. I hope you enjoy this particular basic lecture on equity shares. We'll meet you next time for preference shares. Absolutely. Thank you and good day. Bye bye.